Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister. Margot Frank, her father, Otto the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have Kindly also been underline, students, kindly underline this sentence. The diary was given to Annie Frank for her 30th birthday. जो एनी फ्रैंक थी उसके 30th बर्थडे पे ये डायरी दी गई थी. And the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. इसमें जो था वो 1942 को फर्स्ट एंट्री की गई थी इस डायरी में, और कब तक उसने इसमें अपना रिकॉर्ड रखा था 1944 तक. लिखा है ना, फाइनल एंट्री ऑफ 1st August 1944, यानी 2 सालों तक उसने जितना भी रिकॉर्ड था उसने इसमें रखा था. It was eventually translated from its original Dutch into many languages. जिस लैंग्वेज में एनी ने इसमें लिखा हुआ था उस लैंग्वेज में तो वो थी ही, लेकिन उसके बाद बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, एंड इट बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में शामिल हुई. किसकी डायरी? एनी फ्रैंक की डायरी. हाँ जी बच्चे, आगे. There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Okay. Stop, Mehak. Now next slide is this one. Children, kindly. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now who will start? Divyanshi 88. Yes, ma'am. Writing in a diary. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Paper has Okay, beta. Stop. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. What the Annie Frank said कि लिखना, एक डायरी में लिखना, अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड लिखना जो है is really strange experience for someone like me. जैसे मेरे लिए, एक सेकंड, okay. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Now I am audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. कहती है एनी फ्रैंक कि लिखना जो है वो मेरे लिए सच में ही एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, और शायद
जितना मुझे ये बहुत स्ट्रेंज लग रहा है वैसे हर किसी को लगता होगा जो मेरी तरह होगा. Not only because I have never written anything before. उसके लिए ये strange क्यों था? Because एनी ने कभी भी जो था वो डायरी नहीं लिखी थी. But also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. क्या कह रही है वो? उसकी एक तो एज बहुत छोटी है, तो कहती है कि बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. एक तो मैंने आज से पहले यानी 13 साल से पहले 13-year-old से पहले उसने कभी भी डायरी नहीं लिखी है. बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. और साथ में कहती है जैसे हम भी बहुत टेंस होते हैं कि हम किसी के सामने कोई अपना एक एडवाइस देंगे या अपना कोई थॉट देंगे, अपना कोई आइडिया देंगे तो शायद ही कोई उसमें इंटरेस्टेड होगा. सेम थिंग एनी फ्रैंक. उसको लगता था कि एक 13 ईयर की जो मेरी तरह जो एक लड़की है उसके थॉट्स में वैसे भी इंटरेस्टेड कौन होगा. एक तो मैंने आज दिन तक कुछ लिखा भी नहीं है, कोई भी शायद 13 साल की लड़की के थॉट्स को पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्टेड होगा. Oh well, it doesn't matter. लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे थॉट्स में इंटरेस्ट रखे, आइडियाज में इंटरेस्ट रखे या ना रखे. मुझे तो लिखना पसंद है. आई लाइक राइटिंग. मुझे लिखना पसंद है और मुझे बहुत एक बड़ी मेरी जरूरत है कि मेरे दिल में जो भी है, जो भी मेरी जिंदगी में मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो भी मेरे साथ चलता है, जो भी मेरे साथ होता है या हो रहा है, दैट आई वांट टू जस्ट नोट डाउन इन माय डायरी. इज इट फाइन टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. दिव्यांशी शर्मा. Yes, ma'am. यस बेटा, रीड आउट सेकंड पैराग्राफ. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed there where I was brooding. Yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook Brantley referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay, Now stop, I am- Divyanshi. Stop, bachche, stop. Paper has more patience than people. Kindly underline this sentence, children. Paper has more patience than people. समटाइम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बुक में लिखी गई कोटेशन से भी आता है और ये भी एक कोटेशन है. एनी फ्रैंक के अकॉर्डिंग वो कहती है कि एक जो कागज होता है, एक जो पेपर होता है उसमें ज्यादा पेशेंस होती है एज कंपेयर टू पीपल. यानी अगर हम लोगों के साथ अपनी कोई बात शेयर करते हैं तो डेफिनेटली लोग क्या करेंगे, उस बात को किसी और के साथ जरूर शेयर करते हैं. लेकिन एक जो डायरी होती है, एक जो पेपर होता है, एक जो पेज होता है, उसके ऊपर जब हम अपनी कोई सीक्रेट जो भी बात है उसको लिखते हैं तो जब तक कोई दूसरा उसको पढ़ ना ले तब तक वो पेपर उस बात को अपने बीच में छुपा के रखता है. दैट्स व्हाई शी सेड पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. कि लोगों से कहीं ज्यादा पेशेंस जो है वो कागज में होती है. आई थॉट of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. ये वाली बात मैंने कब सोची थी, एक ऐसे भी मेरी जिंदगी में दिन थे जब मैं अकेली बैठी हुई थी एंड लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ी सी डिप्रेशन में थी एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स. मैं अपने घर पे बैठी हुई थी बिल्कुल शांत, मतलब शांत पॉजिटिव वाला नहीं, थोड़ी सी डिप्रेस्ड थी, बैठी हुई थी विद माय चिन इन माय हैंड्स. और मैंने जो था वो कैसे किया था, अपने हाथों को जो था वो अपनी चिन के ऊपर रखा हुआ था. जैसे कि हम कभी बहुत गहरी सोच में होते हैं फिर बैठते हैं तो हम अपने हाथ से अपनी चिन को सपोर्ट करते हैं. इन द सेम वे एनी फ्रैंक हैज सिट देयर
तो कहती है कि ये वाली सोच मेरे मन में कब आई कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जब मैं आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी, डिप्रेस्ड थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पे बैठी हुई थी, विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड, बहुत बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और बहुत ही सोच में थी कि मैं आज बहुत डिप्रेस्ड हूँ, तो क्या मैं आज घर पर ही रहूं या कहीं बाहर निकल जाऊं, क्योंकि अपने आप को फ्रेश करने के लिए जो था वो उसे क्या करना था, या तो वो डिसीजन नहीं कर पा रही थी कि मैं घर पे ही बैठे बैठे ऐसे सोचती रहूं या कहीं आउटिंग पे चली जाऊं। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, फिर मैंने लास्ट में डिसीजन लिया, नहीं, मैं जहां पे हूँ मुझे वहीं पर ही रहना चाहिए, यानी मैं घर पे हूँ तो मुझे घर पर ही रहना चाहिए। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। मैंने सच में ही इस बात के ऊपर बहुत एनालाइज किया और मैंने फाइंड आउट किया कि सच में ही एक जो पेपर होता है, जो कागज होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस पावर होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस stiff backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend। क्या कहती है वो कि मैं अपने साथ एक प्रॉमिस करती हूँ कि जो मैं डायरी लिखूंगी, जिन पेपर्स पे मैं अपनी लाइफ के बारे में लिखना शुरू करूंगी, जो भी मेरे मन में थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, क्वेश्चंस हैं, जो मैं इन पेपर्स पे लिखूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, आई एम, लिखा है देखो यहाँ पे, yes, paper does have more patience and since I am not planning to let anyone else read, मतलब मैं ये प्लानिंग नहीं कर रही हूँ कि कोई जो है वो इसको पढ़ लेगा। दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे मैं डायरी का नेम देने जा रही हूँ, जिस नोटबुक को मैं डायरी का नेम देने जा रही हूँ, इस नोटबुक को मैं तब तक किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, कब तक, unless I should ever find a real friend, जब तक मुझे मेरी जिंदगी में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिल जाता। It probably won't make a bit of difference। और इससे मतलब उसका जो मेन मोटिव था उस डायरी को लिखने का, बिकॉज द मेन मोटिव इज दैट कि जो एनी फ्रैंक थी, उसके पास कोई भी अच्छा दोस्त नहीं था, बेस्ट फ्रेंड नहीं था, जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सकती थी, चाहे वो अच्छी बातें हो चाहे वो बुरी बातें हो। तो उस चीज को, उन सारे थॉट्स को, जो बातें वो बताना चाहती थी अपने फ्रेंड के साथ, दैट्स व्हाई शी डिसाइडेड दैट आई विल जस्ट स्टार्ट टू राइट डायरी। और वो कहती है कि इस डायरी को मैं तब तक सीक्रेट रखूंगी जब तक मुझे मेरी जिंदगी में जो था वो अपना अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। अब बस मुझे एक रीजन मिल गया था कि क्यों मुझे डायरी लिखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, तो अपनी बातों को लिखने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए मुझे एक दोस्त की जरूरत थी। तो उस दोस्त की कमी को पूरा करने के लिए मैंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी डायरी को, जिस डायरी को मैं लिखना स्टार्ट करना चाहती थी, उसको ही मैं अपना दोस्त बनाकर रखना चाहती थी। तो इसलिए मेरे पास एक रीजन भी आ गया कि मैं डायरी लिखना क्यों शुरू करूंगी, बिकॉज मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। तो अपनी बातों को एज अ फ्रेंडली मैं शेयर करने के लिए अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तन्वी सेठी, यू आर इन द क्लास? Yes, ma'am. ओके बेटा, read out next paragraph, let me put Let it। me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closure, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In
case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. To enhance the image of this long Okay, awaited stop, Tanvi. friend. Okay, stop, Tanvi. Stop it. Let me put it more clearly. वो बहुत ही स्पष्ट विवरण देना चाहती है कि मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बताती हूँ कि मैंने क्यों डायरी लिखना शुरू की. No one will believe that 13-year-old girl is completely alone in the world. Wherein she has written, कहती है कि शायद ही कोई इस बात के ऊपर विश्वास करेगा कि एक 13 साल की लड़की अपने आप को पूरी तरह से अकेला पाती है, पूरा अपने आप को अकेला महसूस, और शायद कोई इस बात पे विश्वास करेगा क्योंकि हर किसी को ये मजाक 13-year-old का जो बच्चा होता है उसे क्या पता है लाइफ के बारे में, उसे क्या पता है वर्ल्डली एक्टिविटीज के बारे में, तो ये सब झूठ है. बस उसने बोला कि शायद ही कोई इस बात पे विश्वास करेगा कि एक 13 साल की लड़की पूरी तरह से इस दुनिया में अकेली है. एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. मेरे पास बहुत ही प्यारी मम्मी पापा हैं एंड 16-year-old सिस्टर है एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और लगभग 30 से ज्यादा लोग, अप्रोक्सीमेटली 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह भी सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली. मेरे पास बहुत प्यारी सी फैमिली है. लविंग आंट्स हैं, अंकल्स हैं एंड अ गुड होम, और बहुत ही प्यारा सा घर है. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में मैं हर एक चीज को पा सकती हूँ, मैं हर एक चीज को देखती हूँ, सिर्फ एक चीज को छोड़कर. और वो क्या था? एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. मेरे पास सब कुछ था. मम्मी पापा थे, ब्रदर्स सिस्टर्स, अंकल्स, आंट्स, देयर चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, लेकिन एक सच्चा दोस्त मेरे पास नहीं था. All I think about when I am with friends is having a good time. मैं जब भी खेलती, मेरे सराउंडिंग में, मेरे नेबरहुड में मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होते. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. कहती है आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग. लेकिन फ्रेंड्स होने का मतलब ये नहीं था कि मैं उन दोस्तों के साथ अपनी हर बात को ही बोल देती थी. ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, उन दोस्तों के साथ मैं सिर्फ जो नॉर्मल जिंदगी की बातें होती हैं, ऑर्डिनरी जो बातें होती हैं, उनको शेयर करती थी. अगर कोई कहे कि हर तरह की बात मैं उन दोस्तों के साथ कहती थी, तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर पाती थी. We don't seem to be able to get any closer. मुझे नहीं पता, मैं उनके इतने ज्यादा क्लोज कभी आ ही नहीं पाती थी. मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं अपने इन दोस्तों के साथ अपनी हर बात को शेयर करूं. एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और शायद यही एक वजह थी कि मैं अपने आप को अकेला महसूस करती थी. मे बी इट्स माई फॉल्ट. हो सकता है ये मेरा ही फॉल्ट होगा दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाती थी. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. उनकी भी गलती नहीं है और मेरी भी गलती नहीं है. मुझे उनमें विश्वास नहीं कर पाती थी, और शायद वो भी मेरे इतने क्लोज नहीं हो पाते थे. और यही एक प्रॉब्लम थी कि हम जो थे, और जो एक नेचर होता है, आप चेंज नहीं करते. राइट द डायरी. फिर उसके बाद एनी फ्रैंक ने जो था वो क्या किया था? डायरी को लिखना स्टार्ट किया. इज इट फाइन चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Samar, are you in the class? Samar, Tushar Nag. Tushar. Yes, ma'am. Yes, beta. Read out next paragraph. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I doesn't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty.
since Okay, no stop. one would. Stop, Rita. Stop. Okay. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination. हाँ जी, मुझे बताना तुषार कि किसे फ्रेंड कह रही है यहाँ पे एनी फ्रैंक. ये सेंटेंस लिखा है ना, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन, कि मैं अपने इस दोस्त को अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचना चाहती हूँ. तो किस फ्रेंड के बारे में सोचना चाहती है एनी फ्रैंक? Anybody else? Ma'am, Anybody else? Ma'am, Kitty. Who is Kitty? Ma'am, Kitty. Yes, who is Kitty? Tell me. Ma'am, Diary. her diary. Yes. Her diary. हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या रीड किया? She has no friend. उसका कोई फ्रेंड नहीं है. फ्रेंड्स बहुत हैं. But she is not having true friend in her life. जब तक वो 13 years की थी उसके पास कोई भी उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं था. ठीक है, that's why she started to write the diary. तो यहाँ पे अपनी डायरी की ही बात कर रही है, उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही है और कहती है to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down. jot down का मतलब है यहाँ पे note down को jot down भी आप लिख सकते हो. ठीक है, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. कहती है कि जैसे कि मैक्सिमम लोग डायरीज का यूज क्यों करते हैं? फैक्ट्स को लिखने के लिए, चाहे वो आपके जीके हो, चाहे वो आपका कैलकुलेशंस हो, उन सारी चीजों को अपनी पर्सनल डायरी में लिखते हैं ना कि हाँ हमने ये वाली चीज यहाँ से ली, हमने ये ऐसा किया, कुछ भी हम लिखते हैं डायरी में, है ना, जो फैक्ट्स होते हैं हम उनको लिखते हैं. लेकिन क्या कहती है एनी कि मैं उन सब लोगों की तरह नहीं करूंगी. I want the diary to be my friend. मैं इस डायरी को अपना दोस्त मानती हूँ, अपने दोस्त की तरह रखना चाहती हूँ. And I'm going to call this friend Kitty. तो सबसे पहले मैं इस डायरी को एक नाम दूंगी, अपने इस दोस्त को एक नेम दूंगी. And what name she gave to this diary, that is Kitty. 1 marks में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, बिकॉज आपको पैसेज भी आएगा जिसमें आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेम जो था वो एनी को दिया था. सो व्हाट वाज द नेम? ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी एज में तो थी उसने डायरी को लिखने के बारे में सोचा था. तो इन द एज ऑफ 13 ईयर ओल्ड, 13 साल की एज में उसने डिसाइड किया था कि मैं डायरी लिखना स्टार्ट करूंगी. ओके, so Nandini, you will explain it in your own words that what you understand. Yes, ma'am. Ma'am, in this chapter, there is the Annie Frank, and she tells about that she is that writing is such a really strange experience for her, because she was feeling very alone in the age of 13, and she is saying that paper has more patience than people. And Nandini, this is not then. मैंने आपको बोला है THEN को हम then कहते हैं. यहाँ पे कंपैरिजन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. दिस इज than, THAN, कि जो पेपर है उसमें ज्यादा पेशेंस है. किससे किया है कंपैरिजन? इंसान से, कि इंसानों से ज्यादा पेशेंस जो है वो आपके पेपर में होती है. ठीक है, सो दिस इज नॉट देन, दिस इज देन. ओके, हर्ष 3114, हर्ष बेटा, explain in your own words. Yes, ma'am. Anne Frank said that writing in a diary is a really strange experience for someone like me. He said that paper has more patience than people.
Why she want to start to write the diary? Ma'am, because she has no true friend. Divyanshi? Divyanshi. Krish, Dhiman, 1588. Yes. Yes, beta. What you learned from this chapter? Kindly explain. Annie has no friend and she बेटा 4 पैराग्राफ करवाए मैंने, आपको 4 लाइंस तो बोलनी आनी चाहिए. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द डायरी. क्या है चैप्टर का नेम? बोलो जल्दी से. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी. Who is the writer of the chapter? Annie Frank. In this chapter, Annie Frank decided to write the diary. Why she want to do this? Because she has no best friend. She is 13 years old girl. She decided to start to write the diary because